أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. میں نے جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی کا ایمان مکمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جو اپنے والدین اور لوگوں سے بڑھ کر نبی سے محبت نہیں کرتا. ہم سب کو معلوم ہے کل لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے. لوگوں کا کہنا، قرآن اور حدیث کا نہیں کہنا. میری طرف متوجہ ہو جائے. آپ اپنے مائنڈ میں بیٹھے تھے، مجھے بولنے میں نہیں، آپ کو میں بولنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہتے ہیں کہ کل پیدا ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اور حدیث کی بات یاد رکھ لیں، یہ ذہن میں بٹھا لیں، دماغ میں بٹھا لیں اچھی طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا نہیں ہوئے. وہ بات یاد رکھ لیں. لوگوں کا کہنا ہے، لوگوں کا کہنا ہے. قرآن اور حدیث میں اس سے یہ بات نہیں ملتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا والے بعض مسلمان میلاد النبی منا رہے ہیں، بعض نہیں منا رہے ہیں. نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہیں شہروں کے اندر، کہیں قریوں کے اندر، سٹیز کے اندر بعض لوگ بہت ہنگامے سے مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، پکوان پکاتے ہیں اس دن اور بیانات کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولتے ہیں. اور بعض لوگ معمولی طرح سے زندگی گزارتے ہیں جیسے گزارنا ہے. اب دو طرح کے مسلمان آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ کرنے والا ہے، ایک نہیں کر رہا ہے میلاد، ایک میلاد نہیں کر رہے، ایک کر رہے ہیں. تو ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن نے وہ بات بھی بتا دیا. کیا بات؟ جب آپس میں مسلمان کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو جائے، بحث و مباحثہ ہو جائے، تو وہ لوٹے اللہ اس کے رسول کے پاس. اللہ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کہ اے لوگوں، اگر تمہارے آپس میں کوئی لڑائی یا بحث و مباحثہ ہو رہا کسی مسئلے کے اندر تو تم لوٹو اللہ اس کے رسول کے اندر. اللہ اس کے رسول، اللہ کا مطلب قرآن، رسول کا مطلب حدیث، یعنی قرآن اور حدیث میں تلاش کرو اس مسئلے کو. تو آج ہم تلاش کریں گے کہ قرآن کے اندر ہے یا حدیث کے اندر ہے. تو آپ قرآن چھان لو. قیامت تک کے بارے میں بول رہا ہوں، قیامت تک بھی اگر آپ چھان لو گے نا، کہ اگر آپ ایک ایک آیت پڑھ کر آپ اگر سمجھنا چاہو یا بولنا چاہو تو کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا بول کے ایک آیت بھی نہیں ملے گی. پورے قرآن میں چھان لو، پوری قرآن اور حدیث کے اندر. دوسرا حدیث کے اندر بھی آپ چھان کر دیکھو کتنے حدیث کی کتابیں نہیں، 6-7 نہیں، بہت سے حدیث کی کتابیں اور کئی احادیث ہیں. اگر ایک ایک حدیث کو آپ پڑھ لیں، صحیح حدیث کی بات کر رہا ہوں میں، صحیح حدیث کے اندر اگر آپ چھان بھی لیں، پوری طرح سے گھس جائے، تو کبھی بھی کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائے یا منانے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی ایسا نہیں ملے گا. جب بات ہو گئی کہ بھئی اللہ کے رسول نے نہیں کیا، قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں ہے، تو پھر کر رہے کیوں مسلمان کہاں سے کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یاد رکھ لو، دین کا مسئلہ ہم سے زیادہ کون سمجھے؟ دین کا کوئی بھی مسئلہ ہم سے زیادہ کون سمجھے؟ صحابہ کرام. ہم سے زیادہ دین کا مسئلہ، دین کے معاملات، دین کی چیزیں کون زیادہ سمجھے؟ صحابہ کرام سمجھے. صحابہ کرام سے اچھا کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ سامنے قرآن اتر رہا تھا، ان کے سامنے رسول تھے، تو ان کو معلوم ہے دین کیسا. دین کو اچھی طرح سمجھنے والے صحابہ. تو میرے بھائیوں، پورے صحابہ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ جن کی زندگی اگر 100 سال بھی لگا لیا جائے تو ان کی پوری 100 سال کی زندگی میں ایک صحابی بھی میلاد النبی نہیں منایا. ایک صحابی، کتنے سال کی بات کر رہا ہوں میں؟ 100 سال.
100 साल की बात कर रहा हूं कि ये एक सहाबी भी नहीं मनाया, जिनके सामने कुरान उतर रहा था, सामने नबी आते जा रहे थे, किसी ने नहीं मनाया। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्फोर 3 साल नबी बनाने के बाद बिस्फोर 3 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने की जिंदगी के अंदर रबीउल अव्वल का महीना आया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं मनाए। एक और हदीस है जिसके अंदर अल्लाह के रसूल ने बात बताई। क्या बात बताए मालूम? कि 3 जमाने सबसे बेहतरीन जमाने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खैरुल कुरूनि क़र्नी सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम। 3 जमाने ऐसे हैं कि सबसे बेहतरीन जमाना, कि जमाने के अंदर आदमी अच्छे रहेंगे, अच्छे काम करेंगे। अल्लाह के रसूल ने बात बताई। वो जमाना कौन सा? आपका जमाना, अल्लाह के रसूल का जमाना, उसके बाद सहाबा कराम का जमाना, उसके बाद ताबाइन का जमाना, तबे ताबाइन का जमाना। इन पूरे जमाने के अंदर अगर इन सारे जमानों को लिया जाए तो 500 साल, अगर सारे जमानों को लिया जाए 500 साल, 600 साल भी लगा ले, 600 साल के अंदर किसी ने भी मिलादुन नबी नहीं मनाया, तो फिर हम क्यों मनाए मेरे भाई? किसी ने नहीं मनाया। अब उसके अंदर इमाम मालिक भी आ गए, इमाम शाफी भी आ गए, इमाम अहमद बिन हंबल भी आ गए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी आ गए। इतने बड़े बड़े अइम्माए कराम ने जब नहीं मनाया, इन 600 साल के अंदर किसी मुसलमान ने नहीं मनाया, तो फिर हम क्यों मनाए? हम क्यों मनाए? क्या वजह से हम मना रहे हैं? अब बाज लोग कहते हैं, बाज लोग, हाँ देखो देख शैतान हमको कैसा गुमराह करता है, उसका एक रीजन मैं बता रहा हूं कि शैतान मिलादुन नबी के नाम पर कैसे गुमराह करता है, मैं बता रहा हूं। बाज लोग जो मिलादुन नबी मनाना बोल के क्या करते मालूम? मैंने बता दिया आपको भाई, कुरान में भी नहीं है, हदीस में भी नहीं है, पूरे सहाबा कराम की जिंदगी के अंदर भी नहीं है, उसके बाद की जिंदगी जो ताबाइन तबे ताबाइन की जिंदगी ने, यहां तक कि अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो नाम बार बार आप सुने हैं, बार बार आप सुनते अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, और मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का नाम आप बार बार सुनते, ये लोग भी नहीं मनाए। आप तारीख जाकर पढ़े, ये लोग भी खुद क्या है, मिलादुन नबी नहीं मनाए, तो फिर हम क्यों मना रहे? हाँ, एक बात याद रख ले मेरे भाई, अच्छी तरह से माइंड में बिठा ले कि बिदात क्या है मालूम? पहले इजाद होती बिदात। बिदात क्या है? पहले इजाद होती, अब उस बिदात को सही करने के लिए क्या है, दलाइल लाया जाता। बात समझ में आ रही? पहले बिदात इजाद होती, उसके बाद क्या है, उस बिदात को सही करने के लिए दलाइल लाया जाता। लेकिन शरीयत का कोई भी सुन्नत ऐसा नहीं, पहले सुन्नत लागू होती, बाद में जाकर आदमी अमल करेगा। पहले अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? नमाज पढ़ो, बाद में जाकर क्या है, नमाज पढ़ाया गया, पढ़े। ऐसा नहीं हुआ कि भाई पहले नमाज पढ़े बाद में दलील आई, नहीं, सुन्नत का मसला ऐसा नहीं था। पहले सुन्नत को अमल लाया गया, यानी पहले लागू किया गया, उसके बाद उस पर अमल किया गया। लेकिन बिदात का मसला ऐसा नहीं। बिदात का मसला क्या मालूम? पहला इजाद कर लिया गया, बाद में क्या है, उसको सही करने के लिए दलाइल लाए गए। ऐसा ही मिलादुन नबी का मसला। पहले क्या है, मिलादुन नबी को 600 साल के बाद एक इलाका है इराक बोल के, उस इलाके के अंदर एक छोटा सा एक इलाका है, वहां पे एक बादशाह, एक हुक्मरान ने इसको इजाद किया। इराक का एक बादशाह था, एक छोटा सा एक इलाका था, वहां पे एक बादशाह ने इसको इजाद किया 600 साल के बाद। और उसको दलाइल कब लाए गए मालूम? अब के जमाने के अंदर लोग ला रहे कि भाई मिलादुन नबी मनाना, कुरान से ला रहे, हादीस से ला रहे। कुरान से कैसे लाते मालूम? 11 पारे की एक आयत है। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं मेरे भाइयों कि आप भी क्या है, इन लोगों के नरगे में ना आए, इन लोगों के फितनों में ना आए। आपको भी मैं समझा रहा हूं कि भाई वो दलील क्या लाते मालूम? मिलादुन नबी मनाना बोल के अल्लाह के रसूल भी नहीं बोले, साहबा भी नहीं बोले, 600 साल तक चला देने, 600 साल के बाद क्या मिलादुन नबी मनाने के लिए शुरू हो गए। और दलील क्या लाते मालूम? अब ला रहे, एक 10 साल से क्या ला रहे वो दलील, एक 10 साल की 15 साल से ला रहे, उससे पहले खींचने दलील, उससे पहले दलील खींचने, वो भी कुरान से लाते। क्या लाते मालूम? एक आयत है 11 पारे के अंदर, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। उस आयत से लेते कि भाई यहां अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत बोले तो मिलादुन नबी। अल्लाह का फजल क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदा होना सबसे बड़ा फजल है। अल्लाह की रहमत क्या? सबसे बड़ी रहमत ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदा होना सबसे बड़ी रहमत है। इसलिए क्या अल्लाह ताला ने क्या फलयफ़रहू, खुशी मनाओ। मेरे भाइयों, इससे, इस आयत से कोई भी आलिम दीन, कोई भी आलिम दीन इससे पहले जितने भी जमाने गुजरे ने,
इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, कोई भी आलिम दीन इस आयत से मीलादुन नबी नहीं लिया। इस आयत से कोई भी आलिम दीन मीलादुन नबी नहीं लिया, बल्कि इस आयत से कुरान मुराद है। खुद अल्लाह ताला ने उससे पहले की आयत में वो बात बता दी। एक और आयत लाते हैं, वो आयत क्या मालूम? ईसा अलैहिस्सलाम की एक आयत है कि ईसा अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश पर सलामती की दुआ दिए कि अल्लाह मेरी पैदाइश पर मुझे सलाम रख, सलामती की दुआ। तो सलाम अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूत व यौमा उबअसु हय्या, सूरह मरियम के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश पर क्या है? सलामती की दुआ देते। मेरे भाई ये बात याद रख लो, कुरान ने क्या कहा मालूम? जितने भी पैगंबर इससे पहले आए उन सारों पर ईमान लाना जरूरी। कैसा ईमान? कि वो सारे के सारे पैगंबर क्या है? अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह ने उनको एक किताब दी, वो सारे लोगों के सामने कुरान तौहीद का पैगाम फैलाए, लेकिन उनकी शरीयत पर हम अमल नहीं करना चाहिए। वो बात याद रखो, उनकी शरीयत पर हम अमल नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी शरीयत को अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया उनके जमाने के अंदर। अब हमारी शरीयत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर हम अमल करते हैं। एक और हदीस लाते हैं, क्या हदीस मालूम? कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल आप पीर का दिन का रोजा क्यों रखते हो? पीर का दिन का रोजा क्यों रखते हो? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि भाई मैं पैदा हुआ, कई चीजें बताए, उसमें से कहा कि मैं पैदा हुआ इसलिए मैं रखता हूं। तो इससे बात निकालते हैं, इससे बात निकालते हुए भी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखे थे, तो इससे यह निकलता है कि मीलादुन नबी मनाना जायज है। मेरे भाई अच्छी तरह से याद रख लो, अगर अच्छी तरह से याद रख लो, जिस जगह रोजे का हुक्म दिया गया ने वहां खुशी नहीं मनाने के लिए कहा गया। आप बकरीद के दिन रोजा रखने का हुक्म दिया गया, बकरीद के दिन रोजा रखने का हुक्म दिया गया नहीं, क्योंकि ईद का मौका अल्लाह ताला ने कहा हराम करार दिया कि भाई ईद है तो खुशी मनाओ, आप खाओ पियो एंजॉय करो। रमजान की ईद खाओ पियो एंजॉय करो। यहां तक कि जुम्मा जो ईद है मोमिनों की, यहां भी अल्लाह ने कहा कि भाई ऐसे रोजे आप नहीं रखना चाहिए, फर्ज रोजों के अलावा दूसरे रोजे जुम्मा के दिन मत रखो का अल्लाह ताला ने। अल्लाह के रसूल क्यों? इसलिए कि ये खुशियों के दिन है, ये खुशियों के दिन। अगर वाकई में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का खुशी का दिन होता तो अल्लाह के रसूल रोजा नहीं रखते थे, बल्कि क्या करते थे? खुशी मनाते थे, पकवान पकाते थे, कपड़े पहनते थे, जुलूस निकालते थे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखे, इसका मतलब ये क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पैदाइश पर खुशी नहीं मनाए, खुशी का इजहार नहीं करे, जुलूस जलवे नहीं निकाले। तो मेरे भाइयों और भी बातें हैं, मैं और भी बातें बता सकता, लेकिन वक्त नहीं। इतनी बात याद रखो कि दीन के अंदर इबादत पूरी तरह से अल्लाह ताला ने ये बात बता दिया कि भाई इबादत को अल्लाह ने मुकम्मल कर चुका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर। अगर कोई आदमी अब कोई एक नई इबादत लेकर आता है और उसको ये बोलता है कि भाई ये नेकी है, सवाब है, उसके लिए दलील चाहिए, उसके लिए दलील चाहिए। बात अच्छी तरह से याद रख लें। अगर कोई भी आदमी आपको एक इबादत बोलता है कि भाई इबादत करो, तो आप उसे बाकायदा तौर पर पूछेंगे कि भाई इसकी दलील क्या है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर दीन मुकम्मल हो चुका, इबादतें मुकम्मल हो चुकी। अब इसके बाद नई इबादतें लाना, नई दीन लाना नहीं हो सकता। अगर ला रहा है तो उसे कुरान और हदीस की दलील पूछा। हाँ, अगर मामलात है, आदात है, अगर ऐसा कोई है जैसे लाइट का लगाना, फैन का चलाना, कुर्सियों में बैठकर नमाज पढ़ना, मिंबर माइक में अजान देना, ये सब आदात बोलते। ये आदात के लिए क्या है? अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल ने कहा कि जितना चाहे करते जाओ, करते जाओ। अगर कोई कह रहा है कि नहीं करना, तो ऐसे जगह क्या है उसे पूछा जाएगा कि भाई दलील लेकर आ। तो मामलात के अंदर, आदात के अंदर अल्लाह ने छूट दी है। अगर कोई आदमी रोक रहा है तो ऐसे वक्त में से दलील पूछा जाएगा। और इसी उसके अपोजिट में इबादत के अंदर आप इबादत करते जाना चाहिए। अगर कोई नई इबादत आ रही है या नई काम आ रहा है तो उसे पूछा जाएगा कि भाई इसकी दलील क्या है, तो नई इबादत जो कर रहा है उसकी दलील क्या है। तो मेरे भाइयों, आज जो मीलादुन नबी मनाने वाले कुरान और हदीस से बात लेते, लेकिन कुरान और हदीस की बात सही है, लेकिन उससे जो मसले निकालते हैं, उससे जो चीजें निकालते हैं, वो चीजें क्या है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है, गुमराही है। हर गुमराही जहन्नम की तरफ लेकर जाती। ये बात अच्छी तरह से याद रखें।